morning everyone. In the today's lecture we will discuss the remaining parts of mixture. In the previous lecture we will discuss the mixture, or we can say that monophysic liquid dosage form. What is the monophysic liquid dosage form? After that the definition of monophysic liquid dosage form. After that the classification, introduction, then some of the advantage of monophysic liquid dosage form, then the next is disadvantage. After that the most important, that is classification. Monophysic liquid dosage form, there are two sub points, that is for the liquid used for internal purpose, and after that liquid used for external purpose. In the liquid used for internal administration, there are for example, that is first is mixture, then second is syrup, third is elixir, then the fourth is linctus. In the liquid used for external administration or purpose, there are three subtypes. First is application on the skin, second is used in the mouth, third is instilled into body cavities. In the first, application on the skin, there are two examples, that is liniment and lotion. Used in the mouth, there are three examples, that is gargles, mouth wash and throat. Then after that, instilled into body cavities, there are douches, ear drop, nasal drop and nasal spray. Okay, this is the classification of monophysic liquid dosage form. In this lecture, we have to discuss the remaining example or type of mixture. In this we have to study the liquid used for internal administration, four types mixture. In the previous lecture we have to discuss the mixture definition, definition of mixture. Just I have revised this to today's lecture. In the today's lecture, I have to revise previous lecture within 2 to 3 minutes. Definition: a mixture is a liquid preparation meant for oral administration, in which medicament or medicaments are dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle. Okay, mixture एक liquid preparation है, यूज़ किया जाता है oral administration के लिए, in which medicament or medicaments are डिज़ोल्व किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और डिस्पर्स्ड किया जाता है सुटेबल व्हीकल के अंदर. इसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर ऐसे बोलेंगे. देन नेक्स्ट इज एडवांटेज: इजी टू एडमिनिस्टर, सुटेबल फॉर इंसोल्युबल ड्रग, suitable for immiscible drugs. The bioavailability is more as compared to solid dosage form. Used for drug causing stomach pain होता है तो हम ये मिक्सचर यूज़ करते हैं. Then after that, disadvantage is that less soluble than solid dosage form, incompatibilities occur, stability, expensive, bulk to carry. After that, classification, the mixture is a classify, that is 5 types. First is simple mixture containing soluble substances, mixture containing diffusible solids, mixture containing indiffusible solids, mixture containing precipitate forming liquids, mixture containing slightly soluble solids. After that, let's see all of these classification one by one. First, we have to just revise previous lecture. Simple mixture, it contains only soluble ingredients. As the name indicates, simple mixture containing soluble substances means in the simple mixture we can add the soluble substances. It contains only soluble ingredients. It is represented by true solution. It is a clear homogeneous mixture. Example, carminative mixture and expectorant mixture, etc. After that, simple mixture, there are the methods of dispensing simple mixture. First step is dissolve solid in 3/4 vehicle. 3/4 vehicle में हमने एज अ vehicle बोल के वाटर लेना है. Examine the solution by holding against light. Filter if any foreign particle is found. Add other ingredients. Add more vehicle to produce final volume. Fill in bottle and label. Cork it and clean bottle. Attach label, wrap bottle and dispense. This is the procedure for simple mixture. After that, some of the example. First is RX, ferric ammonium chloride 2 dry gram, chloroform water 1 fluid once, diaction 1 tablespoons to be taken 3 times after meal. Okay, after that, next is the next classification, next type of mixture, that is mixture containing diffusible mixture or solid. We can say that solid mixture containing diffusible solids. Okay, in these diffusible solids, तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है मिक्सचर का. मिक्सचर कंटेनिंग
डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, इधर मिक्सचर नहीं बोलेंगे, इधर सॉलिड बोलेंगे, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ओके, अब डिफ्यूजिबल सॉलिड क्या होता है वो स्टडी कर लेते हैं हम। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो भी डिफ्यूजिबल सॉलिड होते हैं एज द नेम इंडिकेट डिफ्यूजिबल मतलब वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द व्हीकल ऑन चेकिंग। ओके, यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो आपको लगेगा कि डिफ्यूजिबल मतलब डिफ्यूज़ मतलब जो भी हम वाटर एज अ व्हीकल लेते हैं तो उसके अंदर सॉलिड डालेंगे तो इजीली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसके अंदर। डिफ्यूजिबल सॉलिड और डिफ्यूजिबल मिक्सचर मतलब क्या होता है कि ये इनसोल्यूबल होते हैं व्हीकल के अंदर, वाटर के अंदर, बट ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएंगे तब जबकि हम उसको शेकिंग करेंगे। जब हम उसको हमने डिफ्यूजिबल सॉलिड का मिक्सचर लिया है एक बोतल में, कंटेनर में, उसको हम बोतल में क्या करेंगे, डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंसोल्यूबल नहीं होता। जो डिफ्यूजिबल हमारा सब्सटेंस है, मिक्स मतलब क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस व्हीकल के अंदर हम डालेंगे तो उसके अंदर इंसोल्यूबल नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड नहीं होता। यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड मतलब क्या, जो हमारा सॉलिड इंग्रेडिएंट है यूनिफॉर्मली मतलब पूरे अच्छे तरह से उस सॉलिड के अंदर मिक्स नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड बोलेंगे। अच्छी तरह से हमारे व्हीकल के अंदर मिक्स नहीं होता सब्सटेंस, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, तो जब हम उसको शेक करेंगे तब वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएगा। जैसे भी शेक करेंगे उस बॉटल को, उस कंटेनर को, तो यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाएगा अंदर हमारा जो हमने ऐड किया था एक्टिव सब्सटेंस वो। नो नीड ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, इधर सस्पेंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी हमने डिफ्यूजिबल मिक्सचर प्रिपेयर किया, बॉटल में हमने ऐड किया, तो उसको पैक करने के बाद वो तो इंसोल्यूबल नहीं होता, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाएगा तब जब उसको हम शेक करेंगे। जैसा भी हमने इंटेक करना है उस डिफ्यूजिबल सॉलिड मिक्सचर को, जैसा हमको इंटेक करना है, जब भी इंटेक करेंगे उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद ही हम उसको लेंगे। ओके, डिफ्यूजिबल सॉलिड का समझ में आता है क्या होता है कि एक इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है। कब, जब हमको उसको लेना होता है, इंटेक करना होता है, उसे हमने शेक करना है, तब वो यूनिफॉर्मली पूरा हमारे व्हीकल के अंदर डिस्पर्स्ड, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, नो नीड ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंस करने की मेथड क्या है वो देख लेते हैं हम। पाउडर ड्रग इन मोटर, सोल्यूबल ड्रग एंड मिक्स। तो यहाँ पर डिस्पेंसिंग मेथड पे बताया गया है कि एक फाइनली पाउडर ड्रग लेना है मोटर के अंदर, उसके अंदर हमने ऐड करना है सोल्यूबल ड्रग एंड उसको हमने मिक्स करना है। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, मेजर 3/4 ऑफ व्हीकल, मेक अ स्मूथ क्रीम बाय पोर्शन ऑफ व्हीकल। तो 3/4 मैंने जैसे कि कल के लेक्चर में बताया था कि 3/4 वॉल्यूम, जैसे कि मैंने 100 ml व्हीकल लेना है एज अ वाटर, तो उसके अंदर 75 ml मैंने लेना है और 25 ml जो है वो बैक पीछे रखना है। तो 75 ml मैंने मोटर में ऐड करना है पाउडर के साथ, उसको मेक अ स्मूथ क्रीम बाय पोर्शन ऑफ व्हीकल। थोड़ा थोड़ा व्हीकल हमने 75 ml है, पूरा ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा उसको ऐड करते जाना है मोटर में और उसको मेक अ स्मूथ क्रीम बनानी है। उसके बाद ट्रांसफ़र कंटेंट फ्रॉम मोटर इनटू मेजरिंग apparatus। जो हमने स्मूथ क्रीम बनाए थे उसको ट्रांसफ़र करेंगे मेजरिंग apparatus के अंदर, हमने उसको ट्रांसफ़र करना है। ऐड अ लिक्विड इंग्रेडिएंट, ऐड जो भी हमारा अदर जो इंग्रेडिएंट है वो उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड मोर व्हीकल टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया कि 75 ml 100 ml हमको लेना है, प्रिपरेशन 100 ml बनाना है। 75 ml हमने मोटर में डाला था, 25 ml हमारा रिमेनिंग है, तो 25 ml वॉल्यूम मेकअप करने के लिए उस मेजरिंग apparatus के अंदर हमने ऐड करना है फॉर द मेजरिंग वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम मेकअप। आफ्टर दैट फिल बॉटल के अंदर हमने हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पोर करना है। कॉर्किट मतलब ऊपर का जो कैप है वो अच्छे से लगाएंगे। अटैच लेबल लगाएंगे और स्पेशल इंडिकेशन और डायरेक्शन इज गिवन हियर फॉर मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, दैट इज शेक वेल बिफोर यूज, रैप बॉटल एंड डिस्पेंस। शेक वेल बिफोर यूज फॉर व्हाट पर्पस, जो
हमारा मिक्सचर है इंडिफ्यूजिबल सॉलिड का यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड नहीं होता और इंसोल्युबल ड्रग है, तो उसे हमने इनटेक करने से पहले शेक वेल बिफोर यूज करना, लेबल लगाना पड़ेगा. ओके, डायरेक्शन, स्पेशल इंडिकेशन और वी कैन से दैट स्पेशल डायरेक्शन फॉर व्हाट, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. ओके, सिंपल एंड ईजी है, सिंपल मिक्सचर का जैसा था उसी तरह से मिक्सचर कंटेनिंग इन डिफ्यूजिबल सॉलिड है. यूनिफॉर्म मतलब क्या है, डिफ्यूजिबल सॉलिड मतलब हमारे वाटर के व्हीकल के अंदर ये मिक्स नहीं होता, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होता है. जब कब होगा, जब हम उसको शेक करेंगे यूज़ करने से पहले, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएगा हमारे व्हीकल के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिबल सॉलिड, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड. तो हमने देख लिए थे मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड क्या होता है, उसके एग्जांपल देख लिए थे हमने और उसके मेथड ऑफ डिस्पेंस देख लिए थे. तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यही थी इसकी एक मेथड है. इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रग प्लस सोल्यूबल मटेरियल प्लस व्हीकल ए पार्ट फ्रॉम 3/4 ऑफ द व्हीकल मेक अ स्मूथ क्रीम, एड अ रिमेनिंग व्हीकल फ्रॉम 3/4 ऑफ द व्हीकल, एड टू मेजर, add other liquid में ingredients, make up the volume with the remaining vehicle. उसी मेथड को हमने यहाँ पर दोबारा से एरो करके लिखा है. यही मेथड है मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड की, ये मेथड है, उसको हमने एरो करके भी यहाँ पर दिखाया है. बहुत डब्बा क्यों, तो हमने जैसे देख लिया था हमने मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड का एक एग्जांपल किसे बोलते हैं, उसके एग्जांपल देख लिए थे, उसका मेन पॉइंट देख लिए थे, उसके बाद मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग देख लिए थे और मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग एज द एरो करके भी ऐसे देख लिए थे हमने. उसके बाद उसके सम ऑफ द अदर एग्जांपल इज गिवन हियर, दैट इज फॉर्मुलेशन. फॉर्मूला क्या होता है उसका, एक प्रिपरेशन का फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं. RX यू टेक मैग्नीशियम सल्फेट 15 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट 2 ग्राम, पेपरमेंट वाटर 90 ml, प्रिपेयर अ मिक्सचर. इसका मिक्सचर बनाना है हमको. क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे वाटर के अंदर, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लेंगे 2 ग्राम, उसके अंदर पेपरमेंट वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे. जैसे कि यहाँ पर 90 ml बताया गया है, तो कितना लेंगे हम, 90 ml में तकरीबन 60 to 65 ml हमने लेना है पेपरमेंट वाटर और ऐड करना है वाटर के अंदर, उसका मिक्सचर करना है, एक स्मूथ क्रीम बनानी है. देन मेजरिंग एपरेटस के अंदर उस क्रीम को डालना है. अदर इंग्रेडिएंट होंगे तो अगर लिक्विड इंग्रेडिएंट अदर है तो वो डालनी है उसके अंदर, उसके बाद अदरवाइज नहीं है तो फिर जो बचा हुआ है हमारा 30% और 25%, 30-20% जो बचा है बाकी का व्हीकल उसके अंदर ऐड करना है. उसके बाद हमारे कंटेनर, फाइनल कंटेनर में उसको ऐड करना है. डायरेक्शन, 1 टेबलस्पून फुल टू बी टेकन 2 hours बिफोर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करने से पहले 1 टेबलस्पून हमने लेना है, टेकन 2 hours, 2 hour के बाद ऐसे लेना है हमको. ब्रेकफास्ट करने के पहले, ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे पहले हमने 1 टेबलस्पून टू बी टेकन लेना है. ओके, मेथड हमने देख लिए थे डिफ्यूजिबल मिक्सचर की. उसके बाद देख लेते हैं मिक्सचर कंटेनिंग, यहाँ पर थर्ड टाइप देख लेते हैं मिक्सचर का. फर्स्ट था सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस, सेकंड था मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, थर्ड इज मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स. जैसे कि हमने मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड में क्या देखे थे कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन शेक करने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और जो डिफ्यूजिबल जो सब्सटेंस होते हैं वो व्हीकल के अंदर इंसोल्यूबल रहते हैं. सोल्यूबल होते हैं क्या, नहीं, इंसोल्यूबल रहते हैं. जो भी सब्सटेंस हम व्हीकल के अंदर ऐड करने वाले हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं. तो उसी तरह से मिक्सचर कंटेनिंग, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स. Indiffusible solids are insoluble in vehicle. This is also insoluble in vehicle. Not evenly distribute throughout the vehicle on shaking or not distribute in a vehicle for sufficiently long time. तो यहाँ पर क्या, उसमें क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, लेकिन शेकिंग करने के बाद यूनिफॉर्मली पूरा जो मिक्सचर है मिक्स होता था. जैसे भी शेक करेंगे
जो पूरा हमारा मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पूरा अच्छे से मिक्स होके एक मिक्सचर प्रिपेयर होता है, एक अच्छे से मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसके अंदर, किसके अंदर, डिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर। अब मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इंसोल्यूबल है व्हीकल के अंदर, सॉलिड सब्सटेंसेज जो है, इनडिफ्यूजिबल जो सॉलिड सब्सटेंस है इंसोल्यूबल होता है व्हीकल के अंदर, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द व्हीकल, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कब, शेक, जैसे कि उसमें शेक करने के बाद होता था, लेकिन इसमें शेक करने के बाद भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो मिक्सचर है हम प्रिपेयर करते हैं, शेक करने के बाद भी मिक्सचर के जो पार्टिकल है नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द व्हीकल, और वी कैन सेड दैट नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन अ व्हीकल फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम में क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी क्या होता है, सफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है इस प्रिपरेशन के अंदर। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड और मिक्सचर के अंदर हमने क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे भी हम इस प्रिपरेशन के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे तो पूरा वो इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टिकल। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्विनिन, सैलिसिलेट, कैलोमेल, फिनिसिटीन और चाल्क पाउडर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर containing indiffusible mixed or solid mixture, or we can say that solid. In this indiffusible mixture we can add in this suspending agent, or suspending of drug is must required for indiffusible solids. So suspending agent are added in formulation. Okay, suspending agent हमने ऐड करना ही करना है। इन डिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट हमने ऐड नहीं करना, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है। ओके, आफ्टर दैट तो इसमें हमने इनडिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है। तो द सस्पेंडिंग एजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन मिक्सचर containing indiffusible solids are, first is compound tragacanth powder, second is tragacanth mucilage। ये दो टाइप के जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं ये हमने मिक्सचर के इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर ऐड करने हैं। तो फर्स्ट इज कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर, एज अ सस्पेंडिंग एजेंट वी कैन ऐड इन द मिक्सचर, and also tragacanth mucilage also add in the indiffusible mixture. So first let's see, first is compounding tragacanth powder, इट कंटेन। अब कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर क्या होता है और कितने % में हमने मिक्सचर के अंदर ऐड करना है और क्या होता है ये देख लेते हैं। कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर, फर्स्ट इज कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर, इट कंटेन 20% अकाशिया, 15% ट्रागाकैंथ एंड 20% स्टार्च एंड रेस्ट सुक्रोज। इसके अंदर ये कंपाउंड जो ट्रागाकैंथ होता है ये सब मिक्स होता है इसके अंदर। 20% अकाशिया, 15% ट्रागाकैंथ एंड 20% स्टार्च एंड रेस्ट सुक्रोज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ द मिक्सचर। ये कंपाउंड ट्रागाकैंथ जो मैंने बताया था 20% अकाशिया, 15% ट्रागाकैंथ एंड 20% स्टार्च एंड रेस्ट सुक्रोज, ये जो हमने ऐड करना है ये सब जो कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर का जो मिक्सचर है मिक्सिंग अप जो है 2 ग्राम लेना है। 100 ml मिक्सचर जो 100 ml हम जो मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर 2 ग्राम हमने कंपाउंड ट्रागाकैंथ ऐड करना है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म। अब ये जो कंपाउंड ट्रागाकैंथ हम ऐड करने वाले हैं ये किस में डालना है हमको, ये इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज अदर, जो व्हीकल हम दूसरा यूज़ करने वाले हैं, अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म और वाटर छोड़ के दूसरा अगर व्हीकल हम लेंगे एज अ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड के लिए अदर जो व्हीकल लेंगे क्या बोलता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर छोड़ के अगर दूसरा हम व्हीकल ले रहे हैं तो तब हमने कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर 2 ग्राम 100 ml मिक्सचर के लिए यूज़ करना है। ओके, after that the tragacanth mucilage is second one example or suspending agent for using in the mixture containing indiffusible solid. First is in the proportion of 1/4 of the volume of mixture, it is used in the proportion of 1/4 of volume। 1/4 मतलब जैसे कि मैंने 20 ml एज वाटर लिया है एज ए व्हीकल, उसके अंदर 1 ग्राम ऐड करेंगे हम ट्रागाकैंथ म्यूसिलेज।
ओके। तो नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। तो ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज हमने कब यूज़ करना है, जब हमने एज अ व्हीकल क्लोरोफॉर्म वाटर और वाटर लिया है तो तब हमने सस्पेंडिंग एजेंट इंडिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज ऐड करना है हमको। ओके, तो समझ में आया। मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड मतलब क्या, इंडिफ्यूजिबल जो भी सब्सटेंस होते हैं, इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो होते हैं, सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट, एक्टिव मेडिकामेंट जो भी होते हैं वो इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, व्हीकल के अंदर, जो भी हम व्हीकल लेने वाले उसके अंदर ये इनसोल्यूबल है। फॉर दैट पर्पस इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट और थ्रू आउट द व्हीकल ऑन शेकिंग करने के बाद भी ये मिक्सअप नहीं होती मिक्सचर के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है और उसको सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर करके हमारा जो मिक्सचर है इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर वो हमने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमने दो टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने हैं। फर्स्ट है कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर, सेकंड है ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज। तो कंपाउंड ट्रगाकैंथ जो पाउडर होता है वो हमने वाटर और क्लोरोफॉर्म छोड़ के अगर दूसरा जो व्हीकल हम लेंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, वाटर और क्लोरोफॉर्म व्हीकल हमने यूज़ नहीं करना। अगर दूसरा अदर जो व्हीकल हमने यूज़ किया है मिक्सचर इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए, तो तब हमने कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर यूज़ करना है और कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर हमने वहाँ पर यूज़ करना है। और दूसरा एज अ व्हीकल बोल के हमने वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर लिया तो तब हमने ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज और ट्रगाकैंथ पाउडर यूज़ करना है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मेथड ऑफ, वही मेथड है इसके एक मेथड देख लेते हैं, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। फर्स्ट इज सॉलिड ट्रगाकैंथ पाउडर 2% और 2 ग्राम लेना है हमने। ट्राइचुरेट द पाउडर विथ अ पोर्शन फ्रॉम 3/4 ऑफ व्हीकल। ये जो पाउडर हमने ली है 3/4 व्हीकल हमने लेना है, उसके अंदर हमने ट्राइचुरेट करना है ट्रगाकैंथ को। स्मूथ क्रीम इज फॉर्म्ड, स्मूथ क्रीम बनानी है। ऐड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ व्हीकल, 3/4 व्हीकल लिया और बाकी का जो रिमेनिंग है वो व्हीकल हमने उसमें ऐड करना है। एग्जामिनेशन करना है उसके अंदर, अगर लाइट के सामने रखकर एग्जामिन करना है, कुछ डस्ट पार्टिकल है उसकी क्लैरिटी देखेंगे, उसका डस्ट पार्टिकल और फाइन पार्टिकल कितने हैं, फॉरेन पार्टिकल है क्या देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसे। ऐड अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट, अगर नहीं है तो उसके अंदर ऐड अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट, जो अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट है तो वो डालेंगे, प्लस सोल्यूबल इंग्रेडिएंट अदर है तो वो डालेंगे। मेकअप द वॉल्यूम, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है 3/4 वॉल्यूम ने हमने यूज़ किया, जो रिमेनिंग हमारा वॉल्यूम मेकअप करने के वास्ते जो व्हीकल बचा है वो हमने ऐड करना है उसके अंदर। ये जो मेथड थी, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, ये थी कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर के लिए। अब जो देखेंगे ये है ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज के लिए। जैसे हमने दो देखे थे सस्पेंडिंग एजेंट, एक कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर और दूसरा था ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज। तो ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज के लिए देखते हैं हम मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। सॉलिड लेना है, ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज लेना है 1/4 वॉल्यूम और व्हीकल के अंदर ट्राइचुरेट करना है दोनों को। स्मूथ क्रीम फॉर्म करनी है हमने। ऐड 1/2 ऑफ व्हीकल, जो बचा हुआ हमारा 1/4 मतलब 1 ग्राम ट्रगाकैंथ हमने इसके अंदर ऐड किया व्हीकल के अंदर, और सॉलिड भी हमने ऐड किया। जो बचा हुआ हमारा व्हीकल है वो भी हमने थोड़ा सा उसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ हमारा व्हीकल उसमें से थोड़ा उसके अंदर ऐड करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। ऐड अदर लिक्विड ऐड करेंगे, जो हमारा अदर इंग्रेडिएंट है वो सोल्यूबल इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। मेकअप द वॉल्यूम, जो रिमेनिंग हमारा वॉल्यूम है व्हीकल का जो वॉल्यूम है और व्हीकल की जो क्वांटिटी है रिमेनिंग वो उसके अंदर ऐड करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे एंड देन ट्रांसफर टू द बॉटल एंड देन द नेक्स्ट इज क्या, कॉर्क उसको लगाएंगे। After that, some of the example that is RX. You take PPT chalk powder 30 grain, Catachu tincture 20 minimum. Then cinnamon water is 1 fluid once. Direction second is hora sumenda. अभी इसका डायरेक्शन क्या है आपने फाइंड आउट करनी है। 30 ग्रेन क्या है, 30 ग्रेन और 20 मिनिम कितना है, 1 फ्लूइड वंस कितना है, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद डिफरेंस एक देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है।
डिफ्यूजिबल मिक्सचर जैसे कि देखा था हमने, दिस मिक्सचर दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल में मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। दिस मिक्सचर डिफ्यूजिबल मिक्सचर का देख लेते हैं। दिस मिक्सचर कंटेनिंग मेडिकामेंट विच इज मिक्सड अप अपॉन टेकिंग पाउडर ड्रग इज इवनली डिफ्यूज थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। दिस मिक्सचर इनडिफ्यूजिबल का देखते हैं। दिस मिक्सचर आर कंटेन सब्सटेंस, ये पहले का तो मेडिकामेंट हम ऐड करते हैं उसको शेकिंग रिक्वायर है। इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के लिए दिस मिक्सचर आर कंटेन सब्सटेंसेस विच नॉट गेट्स मिक्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होते। ये पहले वाले डिफ्यूजिबल मिक्स होते हैं बट शेकिंग करने के बाद। अब इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली ये मिक्स होता है, लेकिन कब होंगे, मैकेनिकल शेकिंग और स्टरिंग यूज़ करेंगे तो ये इनडिफ्यूजिबल जो मिक्सचर है तब वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे तो यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज इन फॉर्मुलेशन सस्पेंडिंग एजेंट इन डिफ्यूजिबल मिक्सचर, सस्पेंडिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है डिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर। इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। देन द नेक्स्ट इज इन डिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस नॉट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ व्हीकल, जो सब्सटेंस हमने ऐड करा था इस फॉर्मुलेशन के अंदर वो फ्लोट नहीं होते व्हीकल के ऊपर, वो शेक करने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सब्सटेंस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ व्हीकल, ये जो है ये भी जो इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर हमने सब्सटेंस जो ऐड करते हैं वो फ्लोट होते हैं उसके अंदर, जो व्हीकल के अंदर फ्लोट होते हैं। एग्जाम्पल बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ सबनाइट्रेट, एग्जाम्पल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और कैलोमेल। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। हमने आज क्या क्या स्टडी किए, हाँ हमने आज प्रीवियस लेक्चर भी देख लिए थे इन शॉर्टली, और हमने आज स्टडी कर लिए मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स एंड मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड और दोनों का डिफरेंस आज हमने स्टडी कर लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आपने इसके नोट्स निकालना है और फोकस करना है हर लेक्चर में कितने पॉइंट होते हैं और उसके अंदर क्या उसका कंसेप्ट है, आपने उसको समझ लेना है और नोट्स निकालने हैं साइड बाय साइड। ओके, थैंक यू।